Very good morning to one and all. Uh, Today I am making another video for my Royal Enfield Guerrilla 450. Today is 30th of March, and the last video which I posted in YouTube, many of you guys commented like, do I need a tire hugger for my Guerrilla 450? And the second thing is, uh, are there a lot many splashes during the monsoon season? Do I really need a tire hugger if I'm a Guerrilla owner? As Royal Enfield doesn't gives any type of tire huggers for Guerrilla 450. We all know that. And when I give a back camera, see, this is R15. R15 has got a tire hugger, right? But Guerrilla 450 has no tire hugger installed when you buy it. You get the sari guard, you get the engine guard, you get the radiator guard. टायर हगर इस गाड़ी का था ही नहीं भाई, है ना. तो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ गाइज. ऑफिशियली रॉयल एनफील्ड हैज़ brought a tire hugger for Guerrilla 450, which I will have to use within a couple of months, because मानसून आने वाले हैं भाई. और अगर मानसून आता है और अगर मैं टायर अगर नहीं लगाता हूँ तो आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइज, लाइक आई हैव बीन यूजिंग दिस बीस्ट फॉर मोर देन 6 months नाउ, एंड इट्स लाइक यहाँ तक, यहाँ ये पिलियन सीट है ना, इतना यहाँ तक पानी आता है भाई, यहाँ तक. नॉट इवन हियर. द स्प्लैशेस ऑफ द मड विल कम टिल हियर, दिस प्लेस. सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट to maintain your Zara, Gucci and this and that, you know. If you have these type of clothings, if you love these brands, if you love the white color of the shirt which you love to wear, then you have to install a tire hugger. बिना टायर हगर का भाई आप इस गाड़ी को नहीं चला सकते हो मानसून में. मैं दावे के साथ कह सकता हूँ. अगर कोई बोलता है नहीं चल जाता है भाई, प्लीज़ उल्टा फुल्टा इन्फॉर्मेशन मत दो, ठीक है. पिलियन तो बैठ ही नहीं सकता है विदाउट टायर हगर. और अगर आप सोलो राइडिंग भी करते हैं, आपको स्प्लैशेस का छींटा लगेगा. इट इज़ गारंटेड, लगेगा ही लगेगा. तो नो इश्यूज़. द टायर हगर विच रॉयल एनफील्ड हैज़ ब्रॉट is a very nice tire hugger. I will install it. I'm gonna use the tire hugger for the rainy season, and once the rainy season is finished, I will again open the tire hugger and get this nude or naked look of the tires. Right? There is a difference between the tires of R15 and Guerrilla also, guys. Right? In today's video, I don't want to compare R15 with Guerrilla. आप लोग इतना तो मतलब चिल मार सकते हो भाई. मैं R15 को Guerrilla के साथ कंपेयर नहीं करूँगा, ठीक है. तो अभी मैं सेकेंड कमेंट जो आया था कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट आई यूज़ फॉर माई Guerrilla 450 टू क्लीन देम, राइट. सो आई एम शूटिंग दिस वीडियो अलोन with my mobile phone, that is Galaxy S24. So videos will be in 1080 pixels HDR. I do hope that you people love this quality of the video. अभी मैं फ़िलहाल अपना Osmo Action 4 यूज़ नहीं कर रहा हूँ. तो these are the things which I use in my Guerrilla. Okay, first and foremost जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, that is, please get this microfiber cloth. You will get 3 pieces for around 200 or 250. Okay. This is the clean one which I use after polishing. I will keep it over here. And this is the dirty one which I use in the tires. Okay. Tires and the rims. This one. This is the chain cleaner maintenance kit from Royal Enfield. You get 2 chain cleaning lubricants and 1 lube. This is the lube. This is the chain lubricant from Royal Enfield, and these two are like the chain cleanser. Okay, this is the chain cleaner. Fine. So
इसका थोड़ा स्प्रे का ये छोटा रहता है बट कोई इश्यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो ये मैं यूज़ करता हूँ फॉर क्लीनिंग माई चेन। This is the brush which I highly recommend for all the bikers. This is a very nice brush. It makes your work lot easier, right? इससे मैं कहीं पे कुछ भी कर सकता हूँ। अभी मैं अपना चेन क्लीन नहीं करूँगा क्योंकि मैं 2 दिन पहले ही भाई अपना गाड़ी को धोया और मैं चेन क्लीन भी किया, ठीक है। तो ये चेन, ये सारा जितना भी आप चेन लोगे ना इस तरह का गाड़ी का, आपको हफ्ते में एक बार करके या फिर 1.5 हफ्ते में 1.5 वीक्स में आपको एक बार करके चेन क्लीन करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपका चेन भी यहाँ पे नेकेड हो जा रहा है, न्यूड हो जा रहा है, तो काफ़ी डस्ट एंड डर्ट बैठता है और मानसून का टाइम में तो और ज़्यादा होता है। और भाई कोई अंकित नाम का कोई कमेंट किए थे भाई कि टायर हगर लगता है कि नहीं लगता है, उसमें टायर हगर लगता है। और सेकंड पर्सन जिसने कमेंट किया था कि थोड़ा डिटेल दे दो भाई मैं क्या क्या पॉलिश यूज़ करता हूँ। सी, दिस इज़ द मोटूल MC केयर। दिस इज़ द बेस्ट पॉलिश, ठीक है, बेस्ट पॉलिश 400 ml। दिस इज़ लिटिल बिट कॉस्टली, it's like 510, so you will get this for 480 or 490. This is little costly. This will go for around 6 months. This will go for around 6 months and this is the like the which I said like the diamond shine, ठीक है। ये लोग ना स्पॉट मार्केटिंग करते हैं गाइस, ठीक है। इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप में देखना आप लोग, ये लोग इंजन ऑयल भी बेचते हैं, ठीक है, माइक्रोफाइबर क्लोथ्स भी बेचते हैं और ये सारा प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं, ठीक है। दिस इज़ द डायमंड शाइन। इट्स लाइक इफ़ आई स्मेल दिस इट विल स्मेल लाइक रोज़ वाटर, बट दिस इज़न्ट रोज़ वाटर, ओके। इससे बस नॉर्मल मैं ऐसे स्प्रे करता हूँ, दिस टाइप ऑफ स्प्रे, एंड देन एक बार ऐसे करके पोंछ दो, ठीक है, ये, ठीक है, इस तरह से। अभी मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को। एंड दिस इज़ माई फेवरेट, दिस इज़ माई फेवरेट गाइस, दिस वन डायमंड शाइन, ओके। ये जो जितना भी ब्लैक मटेरियल्स है ना यहाँ पे वाइट अब हो जाएगा आपका, ठीक है। इंजन में आपका वाइट एक हो जाएगा, ठीक है। ये जो लुक देख रहे हो ना अभी मैं जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक ब्लैकिश न्यू लुक दे रहा है ना, ये लुक ये ला के देता है गाइस, ठीक है। ये तो इट्स अ स्प्रे। ये रेडिएटर का ये सारा जगह पे भी वाइट हो जाता है, ठीक है, बट यह पूरा डीप ब्लैक एकदम न्यू लुक में ला के देता है गाड़ी को। और दिखाता हूँ आपको इंजन का ये सारा पार्ट्स में, ठीक है, थोड़ा वाइटिश आ जाएगा। लेकिन ये एक बार स्प्रे करेंगे हम, 1 महीना तक चलता है। 1 स्प्रे विल लास्ट फॉर 1 मंथ, ठीक है। ये पार्ट, दिस पार्ट, ये सारा पार्ट्स में ना वाइट हो जाता है। लाइक वाइट जब हो जाता है ना तो लगता है गाड़ी पुराना हो जा रहा है आपका, ठीक है। आप ये स्प्रे एक बार मार दोगे ना, योर बाइक विल बिकम ब्रांड न्यू, ठीक है। ये मेरा मारा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, ये मेरा मारा हुआ है ऑलरेडी। दैट इज़ द रीज़न यू सी दिस शाइन इज स्टिल देयर। सी, मैंने 2 दिन पहले मारा है, ठीक है, 2 दिन पहले मारा है मैं इसको। जस्ट फॉर वीडियो पर्पसेस मैं एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे ये है, ये इट्स अ स्प्रे, राइट। सी दिस शाइन, इट्स ऑलरेडी प्रेजेंट देयर। सी द शाइन, सी इट्स ऑलरेडी प्रेजेंट। ये एक बार मार दूंगा ना मैं, 1 महीना तक चलेगा, ठीक है। एंड द स्मेल इज़ वेरी नाइस गाइस। डायमंड शाइन, ये जो प्रोडक्ट मेरे को इंडियन ऑयल का वहाँ से मिला है, थैंक यू सो मच, ठीक है। अब लेने के बाद क्या है ना, इससे आपको बस एक बार ऐसे करके पोंछ देना है, बस एक बार पोंछ देना है, ठीक है। और बहुत लोगों का माइंड में क्वेश्चन होगा कि भाई डस्ट बैठते होंगे, भाई ये पूरा ड्राई हो जाता है, सो दैट इज़ द रीज़न इसमें डस्ट नहीं बैठते। और ये पूरा ड्राई हो जाएगा, पूरा उड़ जाएगा हवा में ये कुछ देर में, ठीक है। और ये जो शाइन है ना, ये शाइन ले रखेगा वो। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट आई यूज़। तो परसों मैंने गाड़ी धोया, अब आज अगर मैं एक बार इसको साफ़ कर दूँ, कुछ ज़्यादा नहीं, बस वो रोज़ वाटर से अगर मैं थोड़ा सा साफ़ कर दूँ गाड़ी को, तो गाड़ी मेरा फिर से नया स्टार्ट हो जाएगा।
मेरा बहुत ज़्यादा चलता है, मेरा दिन का लाइक 40 to 45 किलोमीटर चल जाता है। You see this place? See, this is the look which I was talking about. This is the brand new look, isn't it? तो this is one of my favorite product है। ये black colored spray। ये सारा जितना जगह है ना, ये सारा जगह में वाइट 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 हो जाता है। तो ये आपका फ्रंट जगह है ना, तो ये जगह को आप बहुत ज़्यादा देखोगे गाड़ी चलाते वक्त। तो जब भी आप यहाँ पे ये स्प्रे करने के बाद जब भी आप गाड़ी चलाओगे ना, तो यू विल फील आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट्स, यू विल फील लाइक माई बाइक इज़ ब्रांड न्यू। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न। दादा এটা ওই দিকে গিয়ে কথা বলো না। मैं वहाँ से आ रहा था, वहाँ खड़ा होकर बात कर रहा था, मैं यहाँ तक आ गया, यहाँ पे आके बात कर रहा है। आई डोंट इवन नो हु दिस पर्सन इज़। सो ये सारा जो पार्ट है ना गरीला 450 का ना, यहाँ पे ये दिस इज़ अ कवर, राइट? एवरीबडी नोज दिस इज़ अ कवर। खोलूँगा तो मेरे को शॉकर मिलेगा। तो ये कवर भी ना वाइटिश हो जाता है। देखो ये कवर अभी कितना एकदम डीप शाइन कर रहा है ब्लैक से। वाई? बिकॉज आई हैव यूज दैट प्रोडक्ट। ठीक है, इसको एक बार लेके अगर मैं सिंपल रब कर दूँ, अगेन इट विल स्टे। दीज आर द थिंग्स गाइज। मैं सच बोल रहा हूँ यार, मेरे को ना मार्केट से ना गाड़ी धुलाने का एकदम मन नहीं करता है, एकदम ही मन नहीं करता, पता नहीं क्यों। माना मैं उनके पास जेट से उनका वो क्या बोलते हैं, उनका स्प्रे में काफ़ी दम होता है, मेरे घर का पाइप में उतना दम नहीं है। भाई मेरा घर का पाइप से ना मैं सुकून से धोता हूँ, उनका जेट से ना वो सुकून से नहीं धोते। 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट में उनका गाड़ी धोना हो जाता है। ठीक है, सो बेटर है कि अपना गाड़ी अपना धो भाई। ठीक है, मन का संतुष्टि भी रहेगा। और मेरे को गाड़ी धोने में टाइम लगता है, पॉलिश करने के बाद टाइम लगता है भाई 1.5 घंटा। ठीक है, तो ये लुक मेंटेन करने के लिए भाई 1.5 घंटा लगता है। तो माई मॉम एंड डैड थिंग्स लाइक व्हाट आई वाज डूइंग डाउनस्टेयर्स। बहुत मेहनत लगता है भाई ये सब चीज़ों में। ठीक है, चक्का को साफ़ करना, बॉडी साफ़ करना। यू नो वाई? बिकॉज दिस इज़ अ बीस्ट। वेन एवर आई टेक दिस बाइक on the roads, I become the center of the attraction. I come into the limelight. Do you know why? Because it's Royal Enfield, right? This is 450. This is not 350. अभी 350 के साथ मैं 450 का इसका मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, 350 के जो भी बाइक्स है फ्रॉम रॉयल एनफील्ड वो लोग रॉयल है भाई। ठीक है, उनको मैं कोई भी बाइक को मैं रॉयल एनफील्ड का छोटा बड़ा मैं नहीं साबित करना चाहता हूँ। एवरी बाइक ऑफ रॉयल एनफील्ड इज़ गुड। क्या आपको गरीला 450 लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हाँ, इसका जवाब मैं आपको दे सकता हूँ। अगर गाइस आप लोग गरीला 450 लेने को चाह रहे हैं और अगर आपके घर में स्कूटी नहीं है, जैसे कि मेरे को देख लो, मेरा घर में स्कूटी नहीं है, आई डोंट हैव एनी स्कूटी। मेरे पास यामा FZS वर्जन 3 था, उसको मैंने बेच दिया। ठीक है, अब मेरे पास कोई सेकेंड गाड़ी नहीं है, मेरे पास सिर्फ गरीला 450 ही है। तो क्या आपका भी अगर सिनेरियो ऐसा ही है तो क्या आपको गरीला 450 लेना चाहिए? अगर आप दिन का 10-15 किलोमीटर चलते हैं तो आप आराम से गरीला 450 ले सकते हैं। अगर आप दिन का 30 किलोमीटर से ऊपर चलते हैं, 40-50 किलोमीटर अगर आप दिन का चलते हैं, या फिर आप 25 भी अगर चलते हो दिन का, ठीक है, 25 या 30 किलोमीटर, तो भाई आप गरीला 450 तभी लेना अगर आप महीने में 8,500 से 9,000 का तेल भर सको। ठीक है, तो मेरे को इस गाड़ी में, ये गाड़ी को चलाने के लिए इन अ मंथ आई नीड, मैं तो ऑब्वियसली प्रीमियम ही डलवाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये ओपन है, तो ये गाड़ी को चलाने के लिए ना भाई आई हैव टू स्पेंड माई हार्ड अर्नड मनी लाइक 8,000 to 8,500। 8 से 8,500 रुपया खर्चा होता है भाई मेरा। ठीक है, कल यहाँ तक तेल था, आज देखो यहाँ तक तेल आ गया। ठीक है, कम हो गया तेल, सी तेल कम हो गया।
तो ये गाड़ी लेने के बाद अगर आप सोचोगे ना कि अरे यार मैं तो तेल नहीं भरा पा रहा हूँ, अरे यार मेरे को बहुत ज़्यादा खर्चा हो जा रहा है तेल का, तो भाई गरिल्ला 450 आपके लिए नहीं है भाई। ठीक है, गरिल्ला बहुत तेल पिएगा। गरिल्ला को आप गरिल्ला का हिसाब से चलाने जाओगे तो 18, 19, 20 माइलेज देगा। ठीक है, गरिल्ला को आप अच्छे से चलाओगे, प्यार से चलाओगे, तो गरिल्ला बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्यार देगा आपको तो वो है 24 से लेके 26 तक का। ठीक है, सिटी में, हाईवे में ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, 30 तक आ जाएगा हाईवे में। तो 8,500-9,000 का तेल मैं भरता हूँ इसमें महीने का। मतलब यूँ ही आप मान के चलो कि मैं हफ्ते का 11 लीटर तेल जाता है इसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम। मेरा यहाँ पे दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में 114 रुपया करके है, तो 1200 रुपया का हमेशा मैं यहाँ पे तेल भरता हूँ। वीकली में वीकली वंस मैं 1200 का तेल भरता हूँ इसमें। 1200 का तेल एक हफ़्ता चल जाता है। तो 1200 का तेल अगर एक हफ़्ता जाता है तो 4 हफ्ते में, मतलब 1 महीना हुआ तो 4 हफ्ते में मतलब मेरा 8, 8,500, 9,000 रुपये का खर्चा है। और अगर मैं कहीं घूमने चल जाऊँ, ठीक है, अगर मैं कहीं घूमने चल जाऊँ, अगर सडन प्लान किया कि नहीं मेरे को गाड़ी लेके घूमने जाना है, तो भाई 10-11 हज़ार रुपया तो कंफर्म रखा हो, उसको उतना लगेगा ही तेल अगर आपको गरिल्ला लेके जाना है। तो गरिल्ला आप तभी लेना अगर आपको तेल का दिक्कत नहीं है। और अगर आपको तेल का दिक्कत है तो आप हंटर ले सकते हैं, आप क्लासिक 350 ले सकते हैं। ठीक है, अब इससे ऊपर अगर आप जाओगे, कॉन्टिनेंटल में जाओगे, आप इंटरसेप्टर में जाओगे, तो भाई भूल ही जाओ, तेल का वहाँ कंसेप्ट है ही नहीं। ठीक है, वो जब जब बोलेगा मेरे को भूख लगा है तब तक आपको खिलाना पड़ेगा। मेरा औकात यहीं तक का था भाई तेल के लिए, तो मैंने यहीं तक का लिया। आने वाले दिनों में मेरा औकात बढ़ेगा तेल के लिए, तो ऑब्वियसली मैं 650 या फिर 750 में जाऊँगा। अब 450 के बाद मैं 650 में नहीं जाऊँगा, अब मैं 750 में जाऊँगा। अंडरस्टूड? So these are the things which you have to keep in your mind. डेली कम्यूटिंग व्हीकल कॉन्टिनेंटल GT नहीं होता है, डेली कम्यूटिंग व्हीकल गरिल्ला 450 नहीं होता है। मैंने डेली कम्यूटिंग बनाया है बिकॉज आई एम एबल टू अफोर्ड इट। अगर आप भी 8, 8,500, 9,000 का तेल भर के अफोर्ड कर सकते हो तो आप भी डेली कम्यूटिंग व्हीकल बना लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वरना देखो ऐसे भी गाड़ी होता है, जैसे ये देख लो ना, वर्जन 3, ठीक है, इसमें तो 50 का माइलेज मिलता होगा, फिर भी ये गाड़ी यहाँ महीनों भर पड़ा रहता है। दो महीना बाद ये गाड़ी निकलेगा। तब अब ये 50 का माइलेज भी अफोर्ड नहीं कर रहा है, या फिर हो सकता है कि इसका कुछ पर्सनल इश्यूज़ हो। ठीक है, मैंने ये बात इसलिए बोला क्योंकि ये गाड़ी मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब देता है भाई। ठीक है, ये गाड़ी नहीं रहता है तो यहाँ पे मैं अपना गाड़ी पार्क करता हूँ। तो अभी फ़िलहाल है तो इसका बगल में मैं लगाता हूँ। एक बार खोल खाल के आगे कर दिया था, तब से मैं इसको यहीं लगाता हूँ, उसके बाद से कोई छूता नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स ऑफ गरिल्ला 450। मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया। उम्मीद है कि मैं आप लोगों का सारा डाउट्स क्लियर कर पाया। टायर अगर इज़ नेसेसरी भाई, मानसून में लगेगा ही, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, पानी वहाँ तक जाता है स्प्लैशेस, और बाकी सारा बात तो मैं बोल ही दिया भाई। इट्स अ बीस्ट, लेके निकलो, पता चल जाएगा। एक बार वो टेस्ट ड्राइव वगैरह ले लो भाई आप लोग, रॉयल एनफील्ड में जाके एक बार टेस्ट ड्राइव लो। मैंने हंटर चलाया था, ठीक है, मेरा पापा मेरे को ना बहुत फोर्स किए थे हंटर लेने के लिए, तो मैं बोला ठीक है भाई हंटर लेंगे। तो मैं हंटर को ना चलाने गया, पूरा चलाया मैं हंटर। हाँ, मेरे को कुछ खास नहीं लगा भाई। उसके बाद ना मैं इसका चाबी मंगवाया। इसका चाबी मंगवाने के बाद मैंने ये बोला कि मेरे को गरिल्ला का ये टेस्ट ड्राइव करना है भाई, गरिल्ला का चाबी दो। मैंने चाबी इंसर्ट किया, मैंने ऑन किया, वाह, सबसे पहला प्यार क्या लगा मेरे को पता है? इसका डिस्प्ले सही ऐसे करके उठा, फिर सही ऐसे करके नीचे उतरा है ना, ये हंटर में नहीं है भाई। ठीक है, फिर जब मैंने फर्स्ट गियर मारा ना, छोड़ा ना क्लच को भाई, ये सही गया। मेरे को लगा हाँ भाई इस गाड़ी में कुछ है। माँ कसम खा के बोल रहा हूँ भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने जब सेकंड गियर मार के छोड़ा ना भाई, या हवा के साथ बात करना स्टार्ट कर दिया भाई। इतना तेज़ आया, मेरा दिमाग में पहला क्वेश्चन आया कि क्या 450 मेरे लिए सूट करेगा, क्या मैं गरिल्ला लूँ, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी फास्ट मशीन। मैंने खुद को किसी तरह बोला हाँ भाई तेरे को लेना है तो तेरे को स्पीड नहीं चलाना है, तेरे को बस रखना है, तेरा शौक़ है, तू यही लेगा। फिर अभी आपके सामने है भाई, है ना। तो इसी तरह से चल रहा है भाई, आप लोगों का दुआ से। ठीक है,
सो दैट इज़ इट गाइस फॉर टुडेज़ वीडियो। उम्मीद है कि मैं आपको सारा डाउट्स क्लियर कर पाया हूँ। अभी भी और भी अगर कोई डाउट्स है आप लोगों का, डोंट फील एनी, डोंट हेजिटेट, जस्ट कमेंट मी एंड आस्क मी द क्वेश्चंस विच यू वांट। मैं आपको यहाँ पे वीडियो ला के दिखा के बोलूँगा कि भाई दीज आर द प्रोडक्ट्स आई यूज़, ठीक है। एवरीथिंग विल बी लाइक क्रिस्टल क्लियर, कहीं पे कोई भी चीज़ नहीं छुपने वाला है। दीज आर द थिंग्स विच आई यूज़, ओके। थैंक यू so much guys for watching Vishal Vlogs. May the God bless you. Take care. Bye bye.